Hello students, my name is Gaurav Bansal and we are going to discuss what is basic economy, how do an economy work, अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है. So this is specifically I am doing in Hindi on a request of lot of students. So बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम हिंदी में एक वीडियो करें और स्पेशली बिगिनर्स के लिए एक वीडियो करें. तो ये बिल्कुल जो आज प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, अगर वो नहीं समझता इकोनॉमी क्या है उसके लिए. Even class 12 students will also find it useful, class 11 student will also find it useful, and it will be useful for any student preparing for any exam. So here we will understand what is the concept of economy. So the basic of an economy mean an area which we call an economy. भारतीय अर्थव्यवस्था, American economy, Indian economy, we define countries as economy also. Village can also be defined as economy. So economy is confined of some people and some area. In that sense we are talking about economy. Okay? So economy का अर्थ है, अर्थव्यवस्था का अर्थ मतलब कोई एरिया. उस एरिया में कुछ लोग होंगे, कुछ संसाधन होंगे, there will be resources, there will be people. So those basically are economy. Now होता क्या है? What is an economy? The basic of economy is demand. Any economy starts with demand. अर्थव्यवस्था का जो पहला बिंदु है, केंद्र बिंदु, वो है डिमांड. डिमांड कम फ्रॉम आवर नीड. हमारी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, जिससे हमारी डिमांड क्रिएट होती है. हम कुछ डिमांड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज आई एग्जिस्ट, आई नीड ऑक्सीजन, I need food, I need water. These are the most basic needs for survival. So of course there are needs. Now beyond this there are so many things we need. In the modern day you are watching this on a mobile phone or a tablet, or rarely nowadays on a desktop. So if you are watching it there, that means you are using those resources. You need a computer, you need a mobile. This is just an example. You must be wearing clothes, you might be wearing a glass like me, you might be wearing so many other things and using so many things. So all of those are our needs, and for that we create demand. This is the fundamental force of the economy. Demand is the origin. Okay? Now we will try to understand economy as an evolution. कि बहुत आदिम व्यवस्था में, एंशियंट सिस्टम में इकोनॉमी क्या थी, फिर एक हंटर गैदरर सोसाइटी, एक थोड़ा उससे आगे चलें तो एक हंटर गैदरर सोसाइटी में अर्थव्यवस्था क्या थी, फिर एक मिडिवियल अर्थव्यवस्था क्या थी और एक आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है. इन वेरी वेरी ओल्ड, वेरी प्रिमिटिव सोसाइटी, नॉट इवन ए सोसाइटी, ग्रुप, बिकॉज सोसाइटी इमर्ज्ड ओनली लेटर. इन ए वेरी प्रिमिटिव ग्रुप वेर यू आर जस्ट योर ओन फैमिली मेंबर्स सर्वाइविंग समहाउ. what do you need? You need only what I said originally: air, water and food. That's all. There are no clothes in the very ancient primitive type of setup. There is no other need, economic need, material need. You might be using some weapons in order to hunt. Now what are your need? आपकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या जरूरत है? सांस लेने के लिए हवा. अब सांस लेने के लिए हवा अनलिमिटेड है, उसकी कोई मार्केट नहीं होती. सो दैट इज अवेलेबल. पानी. So wherever there would be water, you will be living close to it. You will be living close to water sources. So water would be available from nature. Food. Some food you can directly get from nature without much of hard work. Fruits, vegetables, some. Okay. So कुछ चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाती है नेचर से, कुछ चीजें के लिए आपको काम करना पड़ता है. So in order to satisfy the basic needs, you need to hunt. You need to grow something. So you have almost no demand from others. Your needs you satisfy yourself by creating those basic things. In order to hunt, if you need tools, those tools also you create yourself. So that is the most ancient type of system. From there, if we come to hunter-gatherer tribal societies. Now here we get the first degree of complexity. In a hunter-gatherer society, your system is much more evolved. Now you wear some clothes. Now you have some kind of accommodation. You do not anymore live in holes or let us say caves. Now you have some sort of basic accommodation.
Now you have some kind of a social system. In this system, you would be using some resources. You might be wearing some primitive kind of jewelry, maybe made out of bones, maybe made out of some other things. So in this hunter-gatherer society, economy has become little more complex. Here, what you do, let us say it is a group of 40 to 50 people. In this group of 40 to 50 people, इस 40-50 लोगों के समूह में क्या होगा? काफी सारे लोग जो युवा हैं, जिनमें ऊर्जा है, शक्ति है, वो शिकार करेंगे. So youth, energetic, powerful people, they will be doing the hunting job in this society. So let us say 15 people do hunting. Another 15 people, कुछ और 10 लोग उस खाने को साफ करने का, पकाने का काम करेंगे. So another 10 people, preferably old people, कुछ बूढ़े लोग या कुछ महिलाएं, वो इस ग्रुप में खाने को साफ करने का, उससे स्किन को अलग करने का, फर निकालने का और प्रोसेस करने का, कुकिंग करने का सारा काम करेंगे. फिर सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका स्पेशलाइजेशन है घर बनाना, वो सबके लिए अकोमोडेशन डेवलप करेंगे. फिर कुछ लोग ऐसे होंगे, 5 लोग घर बना रहे हैं, 10 लोग फूड प्रोसेस कर रहे हैं, 10 लोग फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिर 5 लोग हैं जो सबके लिए कपड़े सिल रहे हैं. सो 5 लोग जितना चमड़ा शिकार से आता है उसको सिलते हैं, उसमें कुछ फैब्रिक नेचुरल यूज करते हैं और कुछ कपड़े बनाते हैं. सो इस तरह ये 40 से 50 लोगों का जो ग्रुप है, इसमें सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे. लेकिन अब क्या फर्क आया है? ऑल योर नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर ओन वर्क. जो शिकार कर रहा है वो कपड़े के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, वो घर के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, और जो घर बना रहा है वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, भोजन के लिए किसी और पे आश्रित है. सो इस तरह की अर्थव्यवस्था में हमने देखा स्पेशलाइजेशन हुआ. एक तरह का हमने स्पेशलाइजेशन किया कि ये व्यक्ति शिकार के लिए अच्छा है तो ये शिकार करेगा, ये व्यक्ति इस काम के लिए ज्यादा सुटेबल है तो ये काम करेगा. इस तरह हमने काम का बंटवारा किया. यहीं से एक कॉम्प्लेक्स अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है. ये जो बहुत पुराना सिस्टम है जहां एक परिवार खुद अपनी सारी जरूरत पूरी कर रहा है, यहां कोई अर्थव्यवस्था नहीं है, किंतु यहां एक अर्थव्यवस्था है. इस अर्थव्यवस्था में कोई मॉनेटरी सिस्टम अभी नहीं है, इसमें एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, इसलिए अभी भी ये पुरानी अर्थव्यवस्था है. सो दिस इज स्टिल एन एंशिएंट सोसाइटी. क्लियर? एंशिएंट प्रिमिटिव हंटर गैदरर सोसाइटी. सो इट्स अ वेरी बेसिक इकोनॉमी. लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट क्या हुआ है, अब हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे ही डिमांड क्रिएट होगी इकोनॉमी आ जाएगी. इफ देयर इज नो डिमांड देयर इज नो इकोनॉमी. दैट इज व्हाई आई सेड डिमांड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ इकोनॉमी. So in the very primitive family based system there is no demand, you fulfill your needs, that's it. So there is no economy. But in this hunter gatherer society there is economy, because you demand, you produce food but you demand cloth, you demand shelter. Those who produce shelter they demand other things. So हम सब लोग कुछ कुछ contribute कर रहे हैं और एक दूसरे से सहायता ले रहे हैं, किंतु इसमें अभी तक ट्रेड नहीं आया. सो ये अभी भी एक बहुत प्रिमिटिव, एक बहुत बेसिक अर्थव्यवस्था. यहां से इसको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके चलते. नाउ वी कम टू ए मिडीवियल सोसाइटी एंड देन लेटर ऑन वी विल कम टू मॉडर्न सोसाइटी. नाउ वी कम टू ए सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी. Okay, now we come to a medieval society, or let us say a civilization system. Okay, now in this system what would be there? Now first of all your demands have increased, your needs have become larger, because that is how we define a civilization. You have a standard of living, you use a lot of things, your comfort levels are higher and better. So in this settled agriculture society, some people are in agriculture. Now let us say there is a village of 500 people. In this village about 100 people are engaged in agriculture. About 50 people are engaged in animal rearing. अब शिकार नहीं होता एक सेटल्ड सिस्टम में, आप उन जानवर को पालतू रखते हैं, पशुओं को पालतू रखते हैं. So 50 people animal rearing. Some people, let us say about 10 people, still go out in wild and catch some wild meat also. So still very small extent there are people who are still using forests for their food. Let us say 20 people.
but things are more complex. Now your quality of food has become more complex and you need many more things. Okay, so you might be using spices, you might be using lot of other things. So some people would be actually taking away the surplus of food that is produced in this village and buying other things from other far away villages. For example, this village has no seafood. There is another village which is in coastal area that produces seafood. So you take agriculture surplus from this village. इस गांव में गेहूं ज़्यादा होता है, तो इस गांव से सरप्लस गेहूं को ले जाके दूसरे गांव में कोई ट्रेड करता है, उसका व्यापार करता है, वो गेहूं के बदले में वहां से मछली लाता है. सो इस तरह इस गांव में अब जो लोगों का भोजन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है. उसमें बहुत तरह का भोजन है जो दूसरे अलग गांव में बनता है, उसके लिए ट्रेड होता है. सो अबाउट 100 पीपल एक्चुअली डू ट्रेड. ये लोग व्यापार करते हैं. गांव में कुछ चीज़ें बनती हैं, उनको गांव से लेकर जाते हैं, दूसरे गांव से दूसरा सामान उसके बदले में वो लाते हैं. सो ए वेरी इंपॉर्टेंट factor that defines and civilization is trade, because without trade specialization would be very limited. If you trade then you can do a very high degree of specialization. अगर trade है, अगर व्यापार है, तो specialization बहुत high degree का हो सकता है. So एक hunter gatherer society में trade नहीं था, financial system नहीं था. When we come to settled agriculture, we have trade. We have more complexity in the production system. Now यहाँ पर घर भी कई प्रकार के होंगे, पत्थर के, लकड़ी के, और हो सकता है जैसे हड़प्पा के टाइम पे ईंट के भी घर थे, तो उस प्रकार के घर भी यहाँ होंगे. सो अब भवन निर्माण अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है. सो यहाँ पर उतना स्पेशलाइजेशन नहीं था. किसी प्रकार थोड़ा लकड़ी काट के घास फूस डाल दिया, उस तरह के घर होते थे. किंतु यहाँ काफ़ी सारे लोग अब घर बनाने का या उससे जुड़े कार्य करेंगे. सो लगभग 30 लोग इस गाँव में लकड़ी काटने का, घर बनाने का और इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स टास्क करेंगे. सो दैट इज व्हाट दे वुड बी डूइंग. नाउ सम पीपल वुड बी मेकिंग वेपन्स इन दिस विलेज. लेट अस से 20 पीपल आर एंगेज्ड इन मेकिंग वेपन्स. अनदर 20 पीपल कुड बी मेकिंग कार्ट्स फॉर ट्रेड, क्योंकि जब ट्रेड के लिए वो सामान बाहर ले जाएंगे उसके लिए कोई बैलगाड़ी चाहिए होगी, तो 20 लोग उस प्रकार की बैलगाड़ियाँ, घोड़ा गाड़ियाँ बनाते होंगे. तो मैं अभी पूरा एक्सपेंड नहीं करने वाला हूँ. यू हैव गॉट द आइडिया कि एक हंटर गैदरर सोसाइटी से सेटल्ड एग्रीकल्चर पे जब हम पहुँचते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव होता है और साथ ही हमारी नीड्स, हमारी डिमांड्स बढ़ जाती हैं और द काइंड ऑफ कंजम्पशन वी डू इंक्रीजेस. सो कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीजिंग. हर स्टेज पर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है. इस स्टेज से यहाँ जब हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. हालांकि मानव सभ्यता ने हर चरण में लाखों वर्षों का समय लिया है. सो पॉइंट इज क्लियर. वी इमर्ज टू सेटल्ड एग्रीकल्चर. नाउ वी कम टू द मॉडर्न. ओके, आई डू नॉट वांट टू गो टू मच इनटू हिस्ट्री. नाउ वी कम टू मॉडर्न टाइम. अभी हम क्या कर रहे हैं? माई स्पेशलाइजेशन इज टीचिंग. मैं यहाँ टीचिंग करता हूँ, उससे मुझे कुछ धन मिलता है और उस धन से मैं अपनी बाकी सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ. उसके लिए मैं डिमांड क्रिएट करता हूँ. सो मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड अपॉन मनी. इन दिस सिस्टम स्टिल देयर वाज अ बार्टर, ओके, और देयर कुड बी वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ मनी. सो इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन व्हाट apart from that emerges, in addition to trade, we have more complex system of money, we have system of wealth, we have system of investment. यहां तक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. सो आधुनिक अर्थव्यवस्था, अब हम आज की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट टुडेस पीरियड. इन टुडेस सिस्टम व्हाट डू वी हैव? आज की अर्थव्यवस्था में कार्य कैसे होते हैं? सो वी हैव ए नीड, फॉर दैट वी क्रिएट डिमांड. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम कुछ डिमांड क्रिएट करते हैं. हम बाजार में जाकर कुछ खरीदते हैं, दैट इज डिमांड. In order to fulfill demand, I need income. Now we are talking in modern sense. अगर मुझे अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, आवश्यकताओं को परिपूर्ण करना है, तो मुझे कुछ आय, इनकम की आवश्यकता होगी. So I need income. So because I have need, I create demand, and because I need to create demand, I need income, and since I need to generate income, I need to work. This is the cycle. So all of us work.
Most of us work, let us say. So as I told you, I am teaching right now. You are planning to appear in some examination, to clear that examination and work somewhere with government. Similarly, many of us are doing many other tasks. Almost all of us specialize today. Somebody is banker, somebody is a chef, somebody is, let us say nowadays a new profession is there, YouTuber, and even more professions like food critics. Okay, so now these type of new professions are also emerging. The point is, all of us specialize in some way. We specialize and we do a specified task, and when we do a specified task, इकोनॉमी becomes more and more complex. So अब उस तरह के जो स्पेशल टास्क हैं उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है. 10,000 तरह के ऑक्यूपेशन होंगे, प्रोफेशंस होंगे इन टोटल. ओके, कोई सफाई कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई खुदाई कर रहा है माइंस में. सो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग. सो ऑल ऑफ अस वर्क. व्हेन वी वर्क वी प्रोड्यूस समथिंग. So basically in an economy, now we come to the complete cycle. In an economy all of us perform dual task. हम लोग दो तरह के कार्य करते हैं. हम लोग डिमांड भी क्रिएट करते हैं, साथ ही हम सप्लाई भी क्रिएट करते हैं. और एक अर्थव्यवस्था के तौर पे, एक अर्थव्यवस्था के ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सेंस में ये टोटल सप्लाई जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सब मिलकर वो डिमांड के बराबर होगी. सो इस प्रकार एक बेसिक अर्थव्यवस्था कार्य करती है. सो a village is also an economy, a town is also an economy, state is also an economy, country is also an economy. There is also a concept of global GDP or global economy. So economy एक कोई भी यूनिट हो सकती है, एक परिवार भी एक इकोनॉमी है एक सेंस में. सो इस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं कार्य करती है. हमारी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम चीज़ें खरीदते हैं, और खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए, मनी चाहिए, इनकम चाहिए. और वो इनकम कहाँ से आएगी, उसके लिए हमें कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा. हमें किसी के लिए या तो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या हमें किसी के लिए कोई सेवा देनी होगी, सर्विस करनी होगी. सो ऑल ऑफ अस प्रोड्यूस समथिंग, वेदर इट इज सर्विस और प्रोडक्ट. वी वर्क फॉर समवन और वी वर्क फॉर आवरसेल्फ. वी आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और आई हैव माई ओन बिजनेस. आई इवन हायर अदर्स. सो likewise all of us do something. So typically there are 4 types of things that we have with which we have income. आम तौर पर 4 प्रकार के आय के स्रोत हैं. फर्स्ट इज लेबर. अधिकतर लोगों के पास पैसा कमाने के लिए अपनी शारीरिक श्रम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं होता. सो दे हैव देयर ओन लेबर अवेलेबल एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो वो लेबर करके पैसा कमाते हैं और उसी से अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं. सो मैक्सिमम पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी. देन देर आर सम पीपल हु आर लैंडलॉर्ड्स हु हैव सरप्लस लैंड. वो अपनी जमीनें, घर, भवन किराए पर देते हैं और उसके एवज में, उसके बदले कुछ पैसा पाते हैं. सो दे अर्न रेंट. सो भूपति रेंट के थ्रू अपना कार्य करते हैं. लेबर सैलरी से अपना कार्य चलाती है. और फिर कुछ लोग हैं जिनके पास अत्यधिक पूंजी है, पूंजीपति, महाजन, सेठ. वो लोग कैपिटलिस्ट है. वो लोग पैसा ब्याज पर देते हैं. ओके, सो इन हिंदी वे से ऋण. ओके, सो दे गिव लोन, ऋण, एंड इन एक्सचेंज दे गेट इंटरेस्ट. So there are people who earn interest also. So this is third factor of production. आपके पास अगर लेबर है तो आप खुद कार्य कर कर पैसा कमाएं. आपके पास लैंड है तो ऐसा हो सकता है आप लैंड को रेंट पर दें. आपके पास बहुत पैसा है तो आपको हो सकता है लेबर करने की आवश्यकता ना हो, उस पैसे से पैसा कमा सके. एंड देन फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप. I may not have any of these, let us say, but I have something called entrepreneurship. Entrepreneurs' basic tasks are organizational ability and risk taking ability. एक ऐसा व्यक्ति जो बाकी सबको इकट्ठा कर सकता है और रिस्क लेने की जिसमें क्षमता है, वो एंटरप्रेन्योर होता है. तो ऐसा हो सकता है एक व्यक्ति एक कार्य करे जिसके लिए वो दूसरे लोगों को लेबर भी रखे, वो किसी से जमीन भी किराए पर ले, कुछ पैसा भी बाजार से उठाए और कुछ प्रोड्यूस करे, और बदले में एक
रेवेन्यू जनरेट करे, जिससे वो किसी की सैलरी पे कर रहा है, किसी का रेंट पे कर रहा है, किसी का ब्याज दे रहा है और आखिरी में अपने लिए प्रॉफिट भी बचा रहा है. सो एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट. सो these are the building blocks of economy. These are what creates production. So economy की शुरुआत होती है डिमांड से और ये कंप्लीट कहाँ होता है सारा साइकिल? सप्लाई पे. किंतु सप्लाई अपने आप नहीं आएगी, सप्लाई के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, आधारभूत आवश्यकताएं होंगी. वो आधारभूत आवश्यकताएं लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो जब ये सब मिल जाते हैं तब एक बिजनेस यूनिट बनती है, एक बिजनेस, एक कंपनी क्रिएट होती है और वो कंपनी सबको काम देती है, रोजगार देती है और प्रोडक्शन मार्केट में प्रोडक्ट्स लाती है. सो आधुनिक अर्थव्यवस्था इस प्रकार कार्य करती है. अब इसमें हम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्टॉक मार्केट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा सकते हैं, किंतु एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कार्य करती है. जितनी एडवांस अर्थव्यवस्था होगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें होने वाले कार्यों की संख्या, उनमें इस्तेमाल होने वाली निपुणता, दक्षता, वो बढ़ती जाएगी. सो इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था ग्रो करती है. वी हैव सीन, हमने देखा कैसे बिल्कुल एक प्रिमिटिव, बिल्कुल एंशिएंट सोसाइटी से, सोसाइटी भी नहीं कहूँगा मैं, यूनिट से हम एक हंटर गैदरर सोसाइटी की ओर बढ़े, फिर हम एक सेटल्ड एग्रीकल्चर सोसाइटी की तरफ बढ़े और फिर हम एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं. सो व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी इज ए सिस्टम. नाउ लेट अस समराइज एवरीथिंग. इकोनॉमी इज ए सिस्टम वेयर पीपल क्रिएट डिमांड एंड प्रोड्यूस थिंग्स. ओके, people specialize in some production and they produce some goods and services and sell their goods and services, and in exchange they get income with which they fulfill their demand. This is how economy works. If I have to show it here simply, there are businesses, there are people. Let us say this is business and this is people, household. Household supply their services. हम सामान्य व्यक्ति बिजनेसेस को अपनी सेवाएं देते हैं. ओके, सो हाउस होल्ड सप्लाई देयर सर्विसेज टू बिजनेस. ऑल ऑफ दीज सर्विसेज, हम लोग श्रम करते हैं, लेबर करते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. हम में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर, इन कंपनियों के ओनर भी होते हैं. सो हम लोग सब प्रकार से बिजनेस को सर्विस देते हैं. इसके बदले में बिजनेस हमें इनकम देता है. इस इनकम से हम बाजार में जाकर वस्तुएं खरीदते हैं, वस्तुएं और सेवाएं. सो बिजनेसेस गेट रेवेन्यू फ्रॉम अस एंड वी गेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देम. सो दिस इज हाउ बेसिक इकोनॉमी वर्क्स. इट इज ए सिस्टम ऑफ हाउसहोल्ड एंड बिजनेस यूनिट्स. हाउसहोल्ड, सामान्य व्यक्ति, ये सब बिजनेसेस के लिए कार्य करते हैं और बिजनेसेस इनको इनकम देते हैं और प्रोडक्ट्स देते हैं. और ये बिजनेसेस को क्या देते हैं? अपनी सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज, और साथ में रेवेन्यू देते हैं. सो ये साइकिल जब तक इसी प्रकार चलता रहेगा, अर्थव्यवस्था चलती रहेगी. और ये साइकिल कहीं भी ब्रेक होता है, अर्थव्यवस्था में ब्रेक लग जाएगा. इन लेटर सेशन, बाद के किसी और सेशन में हम इस अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कैसे होगी, फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल होगा, बैंक का क्या रोल होगा, सरकार का क्या रोल होगा, उस विषय में बात करेंगे. इस सेशन में हमने सिर्फ ये समझा है एक अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है. ओके, सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन यूजफुल टू यू, एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू कमेंट, इफ यू फील देयर इज ए क्वेश्चन, आपको लगता है आपको कोई प्रश्न पूछना है, तो आप उसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं. सो best of luck and keep watching it. I will be doing some videos like that. Thank you.